Thank you, sir. Good afternoon, students. We were covering the second lesson of history, and we have seen that the king, or the rulers. We have seen that the king, he had to share his powers with whom? The king had to share his powers with the samantas, the peasants, the traders, and the brahmanas. And the brahmanas. And as far as the revenue was considered, as far as revenue for administrative work was concerned, as far as the administration in these kingdoms was concerned, we saw that the king, the king, he collected what? The king collected taxes. He collected money from the taxes, that were imposed on the people. He collected money from the taxes, and what he did with this money, we saw that there were two important kinds of taxes, and these two important taxes were what? The two important taxes were Veti and one tax was Veti and the other tax was Kadamai. Kadamai tax जो है राजा को क्यों मिलता था? The peasants paid. Stop talking in regional language. Stop conversing in regional language. Peasants paid land revenue for the use of land. So we see Kadamai was the tax that was paid by the peasants for the use of land, and what was Veti? Veti was paid by it was paid as forced labor. अब देखो ये वेती जो टैक्स है, as far as this tax वेती is concerned, what we see is बहुत सारे क्षेत्रों में जो है जो ट्राइबल एरियाज होते थे, ट्राइबल एरियाज वो एरियाज हैं जहाँ पे जो है आदिवासी लोग निवास करते हैं। तो ये ट्राइबल्स लोग जो है इनसे जो है राजा लोग क्या करते थे, ये जो ट्राइबल्स होते थे इनसे राजा लोग जो है कर वसूलते थे, इनसे जो है बंधुआ मजदूरी करवाते थे, फोर्स लेबर इनका जो है वो लोग जो है राजा लोग लेते थे, एंड दैट इज कॉल्ड वेती। एंड व्हाट वर दीस टैक्सेस यूज्ड फॉर? ऑफ ऑल द टैक्सेस वी हैव सीन, इसके अलावा एक दो टैक्स बताइए आप लोग जिसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। To the actually the technical expert maybe he failed to give the link to you people. तो कल जो मैंने पढ़ाया था मैं आज फिर से explain कर दे रही हूँ for your benefit. Okay ma'am. So yesterday what we did administration in the kingdoms. Yes ma'am. कल हम लोग जो पढ़े थे वो था ये, we studied about administration in kingdoms. And under this section what we studied? Under this section we studied that the rulers, the kings, they took the help of the subordinates, the samantas, and with passage of time many kings, they assumed the title. उन्होंने जो है अपने लिए जो है अलग अलग जो है उपाधि लेना शुरू कर दिया, assumed the title of महाराजा धीराज, टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, ठीक है ना, एंड व्हाट, एंड त्रिभुवन चक्रवर्ती। तो ये अलग अलग उपाधि जो है शासक लोग अपने लिए
ओके, त्रिभुवन, त्रिभुवन, ओके। चक्रवर्ती माने तीनों लोकों के स्वामी, अपने आप को जो है वो अलग अलग जो है उपाधियों से सुशोभित करने लगे। ओके, राजा लोग जो है, व्हाट इज इट, ठीक है। एंड वी सी दैट they started claiming themselves, okay, to be what, महाराजा धीराज एंड त्रिभुवन चक्रवर्ती। और ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि the rulers, okay, they were dependent on their subordinates, okay, on their subordinates। और इनके सबॉर्डिनेट्स कौन थे? Who were the subordinates of these rulers? The subordinates were the samantas, okay। अब ये सामंत लोग जो हैं, कौन से लोग जो है सामंत बनते थे? अगर हम अपने पहले के जो टॉपिक्स है उसको अगर हम याद करेंगे, if we try to recollect the topic that we studied earlier, we see, okay, the samantas were, okay, people having power, okay, and wealth, okay। और इन सामंतर्स की कैटेगरी कौन सी थी? जो बिग लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको भी सामंत कहा जाता था। वॉरियर चीफ्स होते थे, they were also called the samantas। So we see that, okay, the samantas, they included the big landlords, they were known as the samantas। Sahibe Alam Qureshi, why you are raising your hand? Yes, the people, okay, who had wealth and who had power, and who were the samantas? Samantas were the subordinates of the kings, okay। जो सबॉर्डिनेट्स होते थे वो सामंत की कैटेगरी में आते थे। जो बड़े जमींदार होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो सामंत बनते थे, ओके। या फिर जो सेना नायक होते थे, जिनके अंडर में जो है बहुत बड़ी सेना होती थी, वो सामंत बनते थे, ओके। तो वी सी दैट दीज वर द पीपल। तो हम देख रहे हैं कि जो राजा है वो अकेले जो है अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ओके। द किंग इज व्हाट? द किंग इज शेयरिंग हिज पावर। द रूलर्स, ओके, वी सी दैट द रूलर्स, ओके, द किंग्स और द रूलर्स had to, okay, or rulers had to share their powers, had to share power with whom? They had to share power with the samantas, okay। सामंत के साथ अपने अधिकारों को बांटना पड़ता था, पीजेंट्स के साथ बांटना पड़ता था, ओके, ट्रेडर्स के साथ बांटना पड़ता था। इसके अलावा जो ब्राह्मण्स होते थे उनके साथ भी जो है अपने अधिकारों को जो है, ओके, राजाओं को बांटना पड़ता था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि द किंग्स और द रूलर्स, दे हैड टू शेयर पावर विद सामंतास, पीजेंट्स, ट्रेडर्स, ब्राह्मणास, ओके, फॉर व्हाट? फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, अपनी प्रशासन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए, ओके, for effective administration in the kingdom। अपने राज्य में जो है, ओके, प्रशासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाने के लिए जो है, जो रूलर्स होते थे, ओके, उनको अपने अधिकारों को जो है बांटना पड़ता था। सामंतों के साथ जो किसान होते थे उनके साथ, जो व्यापारी होते थे उनके साथ, जो ब्राह्मण होते थे उनके साथ। अब ये सामंत का काम क्या था? The samantas were given the task of what? Providing soldiers, okay, providing soldiers to the king, fighting for the king,
Okay, the Samantas, they were in charge of what? They were in charge of the, okay, अगर हम वॉरियर चीफ्स को लेते हैं तो वॉरियर चीफ्स क्या कर रहे हैं? राजा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं. ओके, अगर हम बिग लैंडलॉर्ड्स को लेते हैं, इफ यू टेक द केस ऑफ बिग लैंडलॉर्ड्स और द जमींदार्स, व्हाट दे आर डूइंग? दे आर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू. ओके, the big landlords, they are collecting land revenue for the king. Now we take the traders. Traders, what they are doing? They are doing trade in the, okay, in his kingdom, and while doing trade, they are paying the king what? Taxes and tributes. राजा को जो है वो कर भी देते थे व्यापार करने के लिए, ताकि राजा उनको व्यापार करने की अनुमति दे सके. अब ब्राह्मण लोग क्या करते थे? ब्राह्मण लोग जो है राजा को हर भविष्य में आने वाली जो विपत्तियां होती थी, जो ओके घटनाएं होती थी, उनसे अवगत कराते थे, उनको सलाह देते थे. ठीक है ना? राजा क्या ऊपर आने वाली जो विपत्तियां हैं उनसे उनको सचेत कराते थे, उनको टाइम टू टाइम सलाह मशवरा देते थे. तो ये सारे लोग जो है राजा के साथ मिलके जो है प्रशासन व्यवस्था को चलाने में मदद करते थे. ओके, सो वी सी दैट द किंग्स आर powerful, but still they have to share their power with whom? They have to share their power with the Samantas, the peasants, the traders, and the Brahmanas. And when we go through the chapter, what we see? We see that, okay, in each of these states, resources were obtained. Resources का मतलब क्या होता है? Resources का मतलब होता है संसाधन. The rulers, okay, the king got money, okay, for all administrative work. From whom? Administrative work by, okay, all administrative work in the form of what? Taxes. कर के रूप में जो है, ओके, राजा को जो है पैसा मिलता था, ओके, ताकि वो प्रशासनिक कार्यों को कर सके. So the king got money for all administrative work in the form of tax. Okay, and these taxes, the taxes were levied on people. Okay, राजा जो है अपनी प्रजा के ऊपर, ओके, प्रजा के ऊपर जो है ये टैक्स जो है वो लेवी करते थे. अब ये टैक्स अगर हम इस बुक को अगर चैप्टर को देखेंगे तो हम देखेंगे एक चोला इंस्क्रिप्शन का यहाँ पे जिक्र किया हुआ गया है. ओके, तमिलनाडु के इंस्क्रिप्शन का जिक्र हुआ है, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलास. एंड थ्रू दैट व्हाट वी सी दैट 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर लेविड, ओके, ड्यूरिंग द चोला किंगडम. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ओके, resources were obtained from the peasants, peasants लोग कैसे रिसोर्स दे रहे हैं? ओके, peasants लोग जो है, जो किसान होते थे, वो राजा से जो है जमीन लेते थे खेती करने के लिए, और इस जमीन के ऊपर खेती करने के लिए जो है वो राजा को कर देते थे. अब ये कर जो है कई बार जो है या तो लगान के रूप में होता था, ओके, जैसे कि मैं आपसे जो है एक जमीन का टुकड़ा ले रहा हूँ और ले रही हूँ, और उसपे जो है मैं क्या करूंगी, उसपे जो है मैं फसल उगाऊंगी, और जो कुछ भी फसल होगा, मान लो 5 कुंटल जो है गेहूं हो रहा है, तो उसमें जब मैं जमीन लूंगी आपसे किराए पे, तो आप मुझसे कहोगे कि जो कुछ भी आपका प्रोडक्शन होगा उसका जो है आधा मैं लूंगा, 50% में लूंगा. तो अगर मेरे आपसे लिए हुए जमीन पे अगर 5 कुंटल गेहूं का उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से मैं 2.5 कुंटल आपको जो है क्या दूंगी, लगान के रूप में आपको रिटर्न कर दूंगी. ठीक है ना? So this is how the king obtained resources from the peasants in the form of what? Okay, in the form of produce. Okay, in the form of produce. The peasants, they had to, okay,
part with the products whatever they had produced. Then cattle keepers, जो लोग जानवर रखते थे, उनसे भी जो है राजा जो है वो कर वसूलते थे. अगर उन्हें दूध दही की जरूरत पड़ती थी तो these people they used to provide him. Okay, this was also a kind of tax. And then the artisans, okay, जो शिल्पकार होते थे वो राजा के लिए जो है अमूल्य चीजें जो है बना के जो है उपहार स्वरूप जो है प्रस्तुत करते थे. So what we see is that the king, okay, or the ruler is obtaining resources from the peasants in the form of produce on the land, cattle keepers, okay, in the form of milk and milk products, and artisans in the form of what? Goods, okay, prepared by the artisans. And at times when they were not ready to give it, okay, with peacefully, what the king did, okay, at times, okay, most of the times these people were compelled, were forced to, okay, give away their products, okay. तो जो कुछ भी वो लोग उत्पादन कर रहे हैं उनको जो है ओके उनसे बाय फोर्स जो है ले लिया जाता था. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो अधिकारी होते थे, जो राजा के लिए, जो शासकों के लिए काम करते थे, वो उनपे जो है फोर्स अप्लाई करते थे और फोर्स अप्लाई करके उनसे उनका बनाया हुआ जो सामान होता था या उत्पादन की हुई जो वस्तु रहती थी वो उनसे ले लेते थे राजा के लिए. ठीक है, सो दिस इज हाउ द रिसोर्सेज वेर ऑब्टेन्ड एंड these resources, okay, the resources were used to finance the king's establishment. अब मान लो ये रिसोर्स है, ओके, अब इस रिसोर्स का मैं प्रयोग किस लिए कर रही हूँ, ओके, अगर मैं शासक हूं तो मैं इसको फॉर आई विल बी यूजिंग दिस रिसोर्स फॉर बिल्डिंग व्हाट, बिल्डिंग फोर्ट्स, किला तैयार करने के लिए इसी ओके रिसोर्स का जो मैं इस्तेमाल करूंगी. ठीक है, फॉर बिल्डिंग फोर्ट्स एंड टेम्पल्स. Apart from this, what I will be using these resources for? Okay, I will be using these resources for what? For waging wars. युद्ध करने के लिए जो है मैं इस संसाधन का प्रयोग करूंगी. जो संसाधन मुझे कर के रूप में मिल रहा है अपनी प्रजा से, उसका प्रयोग मैं जो है किला बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगी, मंदिर बनवाने के लिए इस्तेमाल करूंगी. जो ठीक है, उसके बाद फिर मैं युद्ध करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करूंगी और इसका जो है और भी मैं इस्तेमाल करूंगी फॉर व्हाट? फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. जितने प्रशासनिक कार्य हैं, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है ना, जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं उसके लिए जो है, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, रुको मैं इधर लिख देती हूँ. ठीक है, आई होप दिस, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जितने मेरे प्रशासनिक कार्य हैं उसके लिए जो है मैं इन संसाधनों का जो है इस्तेमाल करूंगी. ठीक है ना, एंड आई विल ऑल्सो यूज दिस, I will also use this resource for my, okay, for my welfare. Okay, मैं अपने कल्याण के लिए भी इसका इस्तेमाल करूंगी. ठीक है ना, तो जो रूलर्स होते थे वो अपना प्रभाव जो है अपने प्रजाजन पे स्थापित करने के लिए जो है इन सामंतों का इस्तेमाल करते थे. ओके, इन सामंतों का इस्तेमाल करते थे. आप देखेंगे कि जो बड़े जमींदार हैं, द बिग लैंडलॉर्ड्स, द बिग जमींदार्स, they were given the task of collecting land revenue from the peasants. Okay, so we see
दैट द वॉरियर चीफ्स, अलग अलग लोगों की जो है अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी. ओके, द बिग लैंडलॉर्ड्स or zamindars, what they did, what were their responsibilities towards the ruler? The big landlords or zamindars, they collected land revenue from the peasants, ठीक है. किसान से जो है वो लोग लगान वसूल के जो है राजा को देते थे. ठीक है. Now what is the role of the warrior chiefs? The warrior chiefs, what they are doing? The warrior chiefs, okay, they fought battles for the king. Okay, so we see that each of these people, they are performing their own duty. The functionaries for collecting, okay, revenue, और जो लोग ये लगान वसूलते थे, ठीक है ना, जिनको लगान वसूलने की जो जिम्मेदारी दी जाती थी, प्रभावशाली परिवार के लोगों को जो है वो जिम्मेदारी दी जाती थी, और ये पोजीशन जो है वो हेरिडिटरी होता था. ओके, सो वी सी दैट people belonging to okay, influential families, influential influential families were given the task of collecting revenue. लगान वसूलने की जिम्मेदारी जो है इन लोगों को दी जाती थी. ओके, ठीक है, ठीक है ना. And what we see was okay, we see that this position, okay, the position was what? The position was hereditary. Okay. Okay. For example, hereditary शब्द का मतलब क्या होता है? Okay. For example, Ram, okay, is collecting revenue. ठीक है ना. अब राम के बाद कौन कलेक्ट करेगा? His son. Okay, श्याम. Supposing this is the example. Okay, अगर राम को जो है आज के डेट में मैंने राम को जो है लगान वसूलने का अधिकार दे रखा है, ओके, तो राम के बाद जो है ये अधिकार जो है वो उसके पुत्र के पास चला जाएगा, श्याम के पास. अब श्याम के बाद जो है ये अधिकार जो है ओके मोहन के पास जाएगा. मोहन कौन है? ओके, श्याम का ग्रैंडसन. ओके, मोहन इज द ग्रैंडसन ऑफ राम. तो एक ही परिवार के सदस्यों को ओके प्रभावशाली परिवार जो है चुने जाते हैं, जिनका जो है उस क्षेत्र में प्रभाव होता था, उन परिवार से जो है सदस्य चुने जाते थे लगान वसूलने के लिए. और ये पोजीशन जो था वो हेरिडिटरी था, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पोता. ओके, और ऐसे करके जो है ये जो है वो चल रहा था. और हम देखते हैं कि ओके जो करीबी रिश्तेदार थे, ओके जो करीबी रिश्तेदार होते थे उनको जो है राजा लोग जो है नियुक्त करते थे. इन मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स, व्हाट वी सी इज इन मेनी केसेस close relatives of the king, okay, got the right to collect revenue. लगान वसूलने का जो अधिकार था,
कई बार जो करीबी रिश्तेदार होते थे उनको जो है लगान वसूलने का जो है अधिकार दिया जाता था। नहीं दे रहा है कोई Okay? छुट्टी है जैसे। Now if we go through, okay, the Chola inscriptions, जो बच्चे कल नहीं पढ़े हैं वो आज सुन ले। The inscriptions of the Chola, okay? कल हम नहीं पढ़े थे। ठीक है, आपके बुक में क्या मेंशन किया गया है? The Cholas, okay, the inscriptions of the Cholas who ruled, the inscriptions of the Cholas who ruled Tamil Nadu, who ruled Tamil Nadu, okay? Tamil Nadu. Yes, who ruled Tamil Nadu refer to, okay, refer to 400 different forms of taxes, okay, received from people, From okay? people. चोला एम्पायर के जो लोग होते थे, ठीक है ना, चोला जो शासक होते थे वो अपने प्रजाजन के ऊपर जो है लगभग जो है 400 प्रकार के कर जो है वो लोग, ओके। Ma'am, we cannot see. Yes, you cannot see the lower part. You cannot see the lower part. I will write it on top. Okay, received from people. तो अपनी प्रजा से जो है लगभग 400 प्रकार के जो है कर वसूलते थे। नहीं आ रहा है। ये चोला शासक लोग जो थे, ओके, 400 प्रकार के लगभग जो है ये कर वसूलते थे अपने प्रजा से। और इन करों में जो है इम्पोर्टेंट अमंग देम वेर व्हाट? Important taxes, important among them were Veti, okay, and Kadamai. So we see that of all the 400 different types of taxes that were levied on the people, the two important taxes were Veti and Kadamai. अब वेती टैक्स क्या था? ओके, वेती टैक्स जो है उन लोगों के ऊपर, ओके, दिस टैक्स वेती, ओके, स्टॉप whistling, it was levied, ओके, इसीलिए आप लोगों को म्यूट कर दिया जाता है। आप लोग बदतमीजी करने से बाज नहीं आते हो। प्रिंसिपल सर सारे क्लासेस में जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती होगी आपकी, खूब बढ़िया पढ़ाई करते होंगे कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं। हाँ, इट वॉज लेविड ऑन द ट्राइबल्स, ओके। जो ट्राइबल्स होते थे, जो आदिवासी लोग होते थे, उनसे जो है, ओके, ये टैक्स, वेती टैक्स जो है वसूला जाता था, ओके। It was received in the form of forced labor. बंधुआ मजदूरी उनसे करवाई जाती थी। जो ट्राइबल्स होते थे उनसे जो है बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी, ओके। तो शासक लोग जो है वो ट्राइबल्स लोग से जो है बंधुआ मजदूरी करवाते थे। ये भी एक प्रकार का जो है कर था जो उस समय जो है चोला शासकों ने जो है लेवी करके रखा था। और दूसरा टैक्स है आपका कदमई। इट वाज लेविड, ओके, on the peasants, landless peasants, and received as land revenue, ओके। जमीन के इस्तेमाल के लिए जो लगान वसूला जाता है उसके रूप में जो है कदमई जो है वो रिसीव किया जाता था।
So these were the two important taxes. Okay. Apart from these two taxes, there were taxes on, okay, taxes were also imposed on, taxes were also imposed on the thatching of houses. मान लो आपको पलानी छवाना है, ओके, तो आपको कर देना होगा, ओके. द यूज ऑफ लैडर, आप अगर सीढ़ी किसी से लेते हो, ओके, ताड़ी के पेड़ पे चढ़ने के लिए जो है, यूज ऑफ लैडर टू क्लाइंब पाम ट्रीज, ठीक है ना. Okay, taxes were also imposed on the thatching of houses. Okay, the use of ladder to climb palm trees. Okay, and it was also used, okay, as a cess and as a cess on succession to family, succession of family property. ओके, पैतृक संपत्ति अगर आपके नाम होती है, आप अगर अपनी पैतृक संपत्ति, ओके, पुरखों की जो संपत्ति है, अगर वो आप अपने नाम करवाना चाहते हैं तो आपको जो है उसके लिए भी कर देना पड़ेगा. ओके, सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी. ओके, so these were the kind of taxes that were levied. Now one question is given there. One question has been provided. One question has been provided related to this section. Are any such taxes collected today? ये जो हम लोग अलग अलग प्रकार के कर की बात कर रहे हैं, क्या इनमें से कोई आज के डेट में कोई कर वसूला जाता है? No ma'am. Yes, ma'am. एक है, एक Yes, है. ma'am. Yes, ma'am. Which one? Ma'am, in bank. No, बैंक का तो यहाँ जिक्र ही नहीं हो रहा है. हाँ, किस प्रकार का कर वसूला जाता है आज के डेट में? इतने सारे कर की जो, हाँ, Trade. Ma'am, trade. नो 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 नो. ओके, Ma'am, peasant. in Ma'am, present time, okay, the answer is this. In present times, tax, okay, is received for ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ओके, अगर आप अपनी पैतृक संपत्ति अपने नाम करवाना चाहते हैं तो आपको सरकार को जो है कर देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है ना. इन प्रेजेंट टाइम्स टैक्स इज रिसीव्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ओके, ठीक है ना. अगर आपके संपत्ति अगर आपके नाम ट्रांसफर होती है तो आपको जो है सरकार को जो है कर देना पड़ेगा. अगर आप ये कर नहीं देंगे तो आपकी पुरखों की संपत्ति आपके नाम ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है ना. ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ टैक्स दैट इज लेविड नाउडेज. Apart from this, one more question is there in your book, okay, that is on page number 17. Do you think being born as a Kshatriya was important in order to become a ruler? क्या आपके हिसाब से जो है क्षत्रिय के रूप में जन्म लेना जो है जरूरी था शासक बनने के लिए? Yes or no? तो वो तो कौन आंसर? हाँ? Do you think being born as a Kshatriya was important? Yes, ma'am. Yes. How? Yes, ma'am. How? Yes. No, ma'am. हाँ? अब मान लो, ठीक है, अगर मान लो कि मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है ना, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा काम है पूजा अर्चना करना, मंदिर में पूजा करवाना, ठीक है, घरों में जाके जो है पूजा पाठ करवाना, लेकिन मैं जो चाहती हूँ कि मैं राजा बन जाऊं या रानी बन जाऊं, तो क्या मुझे क्षत्रिय के रूप में जन्म लेना जरूरी है?
क्या मैं एक ब्राह्मण होके राजा नहीं बन सकती हूँ? हाँ, यस मैम, राजा yes, या रानी नहीं ma'am. बन सकती हो? ऑफ कोर्स यस आई मैम, बन सकती हैं, ओके बन सकते हैं, हम आराम से बन सकती हैं। okay, so we see that that is not the answer. Okay, that was just an illustration. Okay, no, it was not important. मैम दंती दुर्गा। Yes, we can give the example of Danti Durga. Very good. Example Danti Durga. देखो बच्चे ने जो है ओके दिमाग लगाया है। हम दंती दुर्गा का उदाहरण दे सकते हैं, बुक में दिया है, ठीक है ना? हम दंती बुक दुर्गा में का दिया एग्जाम्पल है। दे सकते हैं। वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ दंती दुर्गा. ओके, it was not important to be born as a kshatriya in order to become a ruler. Okay, chiefs जो सेना नायक होते थे वो क्या करते थे? सेना नायक जो है जब वो शक्तिशाली हो जाते थे, जब उनके पास ऐश्वर्य हो जाता था, वो अपने स्वामी की हत्या कर देते थे या अपने स्वामी को जो है राजगद्दी से हटा के खुद राजगद्दी पे बैठ जाते थे, ठीक है ना? ओके, और अपने आप को जो है क्लेम करने के लिए कि वो सही मायने में शासक हैं, वो क्या करते थे? वो दंती दुर्ग जैसे जो है अनुष्ठान करते थे।